and we were getting ready for a big celebration. Oh, yeah. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. The great state of Ohio. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% for 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina. We're up 1.4% for 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous... We're up 690,000 votes in Pennsylvania. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. We're winning Michigan by, I'll tell you, I looked at the numbers. I said, wow, that's a lot. By almost 300,000 votes. And 65% of the vote is there. And we're winning Wisconsin. So we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those three states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many, we had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight.
And then you take a look at the kind of margins that we've won by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newton? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory. 370. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won. Worked with us, and Mr. Vice President, say a few words, please. अमेरिका की जनता का शुक्रिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर जो बाइडेन पर साधा निशाना और कहा कि बाइडेन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, रात भर गिनती को लेकर हम कोर्ट जाएंगे, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। साफ कहूं तो हम चुनाव जीत चुके हैं, शानदार नतीजे आने वाले हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। चुनाव नतीजों पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। और जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं उसे प्लीज ब्रेकिंग की फॉर्म में, फुल फ्रेम ब्रेकिंग में रखें आप। पहला तो ये, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर साधा निशाना। अगला ये, हम टेक्सास, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना से जीते। अगली बात बड़ी जो बोली है वो ये कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जो बाइडेन को पता चल गया है कि हार रहे हैं, और यही एक वजह है कि अदालत जाने की फिराक में है। यानी सीधे तौर पर जो बाइडेन पर निशाना साधा है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे भी बड़ी बात यह है कि आधी रात को ये अमेरिका में संबोधन किया जा रहा है। अमेरिका से आधी रात में डोनाल्ड ट्रंप को लाइव आप सुन रहे थे। यानी आधी रात, अभी आप मान करके चलिए कि रात के लगभग 1 या 2 बज रहे होंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन हो रहा है। हम जीत रहे हैं और हमारी जीत लगभग पक्की है। साफ कहूं तो हम चुनाव जीत चुके हैं। वॉशिंगटन से आधी रात में डोनाल्ड ट्रंप को लाइव आप सुन रहे थे। हमें उम्मीद के मुताबिक ही जीत मिलेगी। चुनाव नतीजों के बीच यूएस के प्रेसिडेंट को सुन रहे थे आप। हम टेक्सास, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना से जीत चुके हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। पेंसिल्वेनिया जो कि एक स्विंग स्टेट है, वहां से भी हम लगभग जीतते चले आ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट है और हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वहां से भी हम जीत जाएंगे। चुनावी नतीजों के बीच यूएस प्रेसिडेंट, क्या हम एक बार फिर से सुना सकते हैं क्या? पीसीआर टीम, क्या हम फिर से सुना सकते हैं? एक बार फिर से सुनाइए। और हाँ, इसके बाद जो बाइडेन ने जो भी बोला था, इसे भी तैयार करके रखिए। अभी फिलहाल के लिए प्लीज ट्रंप को सुनाया जाए। जो बाइडेन की बाइट निकल करके रखी हुई है उसे बाद में सुनाइएगा प्लीज। अभी सुनाएं आप डोनाल्ड ट्रंप को। And we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success.
The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. The great state of Ohio. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% for 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina. We're up 1.4% for 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन पर सीधा हमला किया, हमें उम्मीद के मुताबिक जीत मिलेगी। अमेरिका में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है इलेक्शन। हम टेक्सास, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना से जीते हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। हम पेंसिल्वेनिया भी जीत रहे हैं, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। न्यू जर्सी, अमेरिका सीधे आपको लेकर के चलते हैं। और एनआरआई फाउंडेशन के दीपक कावड़िया मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक कावड़िया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने हमें यूएस टाइम्स स्क्वायर की रिपोर्ट एक दिन पहले ही भेजी थी। सुबह से लेकर के अभी तक एक एक जानकारी आप दे रहे हैं। अभी तक ये पता चल रहा है कि इलेक्टोरल वोटों के मामले में ट्रंप 213 और जो बाइडेन 225, अभी तक का मुकाबला ये चल रहा है। आपके पास की जानकारी क्या है, अभी का ताजा अपडेट जो भी आपको मिल रहा हो? तो अभी के हिसाब से है कि पेंसिल्वेनिया की 20 इलेक्टोरल सीट जो ट्रंप के फेवर में है, जहां पे ट्रंप मेजोरिटी से लीड कर रहे हैं। टेक्सास ट्रंप जीत चुके हैं 38 सीट में, वहां पे ट्रंप ने मार्जिन से जीते हैं। विस्कॉन्सिन ट्रंप के फेवर में है। नॉर्थ कैरोलिना की 15 सीटें ट्रंप के फेवर में है। जॉर्जिया एक बार दीपक कवड़िया जी, एक बार आप मुझे इलेक्टोरल वोट के मामले में बता दें, ट्रंप कितने और जो बाइडेन कितने हैं, क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। एक बार क्लियर करके थोड़ा सा बताएं। 11 सीट्स में आगे है और ट्रंप 80 सीट्स में आगे है। पीसीआर टीम क्या बताया गया है? पीसीआर टीम, एडिटोरियल टीम, क्योंकि मुझे आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। उस हिसाब से ट्रंप आपको सुनाई 211, 218 ये बता रहे हैं आप? 211 जो बाइडेन और 218 ट्रंप, ये बता रहे हैं दीपक जी आप? नहीं। 213 सीट्स एज ऑफ नाउ ट्रंप के पास हैं और 237 सीट जो बाइडेन के फेवर में। एक मिनट आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए आप। 230, 237 ये बताया जा रहा है अभी दीपक कावड़िया जी की तरफ से। नीचे की जो पट्टी है इसे अपडेट किया जाए, नीचे की पट्टी को अपडेट करें। पीसीआर टीम, एडिटोरियल टीम, अगर मेरी आवाज जा रही हो, एक तो मुझे गलत जानकारी ना दी जाए। पीसीआर से विशाल, मैं आपसे कहना चाहूंगा 230, 237 को पूरी तरह से अपडेट किया जाए, जितनी भी जानकारी दीपक कावड़िया जी दे रहे हैं। दीपक जी आगे की बात बताएं, स्विंग स्टेट के बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में स्विंग स्टेट जो है गेम चेंजर साबित होगा।
तो ये पोजीशन है 213 कंपेयर टू 237 जो बाइडन। हाँ आप 230 को करेक्ट कर दीजिए, 213 है ये। और अभी जो जहां पे ट्रंप लीड कर रहे हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी लीड कर रही है, हाँ। वो 80 सीट लीड करती है। ठीक है, आप बोलते जाएं, आपको बिल्कुल तो सुन रहे हैं हम। 213 प्लस 80 सीट 293। ठीक है, यस। ठीक है। क्या ये माना जाए कि ग्रेजुअली अब डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे स्विंग स्टेट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत मुमकिन लग रही है? नहीं, मुमकिन नहीं है, कंफर्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने विनिंग स्पीच दी है, क्योंकि वहां पे मार्जिन ऑफ वोट्स इतने कम है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। हमने आपको आज 1 घंटे पहले भी बता दिया था कि ट्रंप विल विन बाय 20 सीट। ठीक है। और ट्रंप का नंबर 293 के आंकड़े पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ठीक है। और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, प्लीज मेरी एडिटोरियल टीम से गुजारिश है, 230 ट्रंप को अपडेट करें, 237 जो बाइडेन को अपडेट करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, 230 डोनाल्ड ट्रंप को अपडेट किया जाए और 237 जो है जो बाइडेन, 213 नहीं है, 230 है। मैं बार बार कह रहा हूं 213 ही है वो, सॉरी 213 ही है वो। अच्छा 213 है, 213 237। लेकिन अभी के लिए दीपक, हाँ पे ट्रंप लीड कर रहे हैं और बाइडेन 237 प्लस 11 पे लीड कर रहे हैं। 237 प्लस 11 पर लीड कर रहे हैं, यानी 270 बहुमत का जादुई आंकड़ा है। अगर मैं इलेक्टोरल वोट की बात करता हूं, दीपक कावड़िया जी प्लस 80 सीट पे ट्रंप लीड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमरीश त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश त्यागी जी, डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीत रहे हैं, जो बाइडेन क्यों हार रहे हैं? क्योंकि कहा यह गया था कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरे हुए हैं अपनी कोरोना पॉलिसी को लेकर के, अपनी जो फैमिली सेपरेशन पॉलिसी है उसे लेकर के भी घिरे हुए हैं, और इसके अलावा रोजगार को लेकर और अमेरिका के लोगों को लेकर के जिस तरह के वादे किए गए थे। क्योंकि कहा यह जाता है कि जितने भी रिपब्लिकन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा ये परंपरावादी यानी कन्वेंशनल सोच के कहे जाते हैं, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही कन्वेंशनल होती है। लेकिन बावजूद इसके भी अमेरिका में काफी ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन इस नाराजगी को किस तरह से टैकल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? देखिए, जैसा कि अभी दिलीप जी बता रहे थे कि स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप अच्छा कर रहे हैं और वो 293 तक जा सकते हैं। हो सकता है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और आपने पूछा डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीत रहे हैं। देखिए, जो पिछले जनवरी तक के जो सर्वे आ रहे थे और उसके बाद भी उनकी अमेरिका में 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो आतंकवाद को लेकर आपके राष्ट्रपति का क्या वो है स्टैंड, उसमें 72% लोग जो हैं ट्रंप के आतंकवाद को लेकर जो उनका रवैया था उससे काफी खुश थे। इसी तरह इकोनॉमी को लेकर जो उनका रवैया था उससे काफी लोग खुश थे, उसमें 62% के करीब लोग इकोनॉमी को लेकर खुश थे। कोरोना काल में जरूर इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, लेकिन जनवरी तक इकोनॉमी बहुत अच्छी रफ्तार पर भाग रही थी। तीसरा है खाद्य एवं दवाई की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा था। तीनों पर तमाम सर्वे में ट्रंप के कार्य को सराहा गया था। इमिग्रेशन वहां, क्योंकि वहां लोकल उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, उसको जो सबसे निम्न स्तर पर उनका जो सर्वे में आ रहा था वही था। तो जो लोकल हैं, जिनको हम अमेरिकन लोकल कहते हैं, नॉन एफिशिएंट कहते हैं, जिसकी आबादी लगभग 62% है, मुझे लगता है उनको प्रभावित करने में ट्रंप जरूर रहे हैं। इसी वजह से ये परिणाम जो दिलीप जी बता रहे हैं, क्योंकि मेरे में लास्ट अपडेट था लगभग 30 की लीड जो बाइडेन ले रहे थे, लेकिन अभी दिलीप जी ने करेक्ट किया है कि लगभग ये लीड। ओके, ठीक है। ओके, अमरीश त्यागी जी, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। अमरीश त्यागी जी दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। मैं बार बार सुबह से एक ही चीज समझा रहा हूं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। मल्टी विंडो लेकर के आए, मल्टी विंडो लेकर के आइए। हाँ, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, किस तरह से फैसला किया जाता है, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी सहयोगी प्रिया सिंह तो मेरे साथ में हैं, जो हमें बताएंगी, पूरी मार्किंग करके बताएंगी और मैपिंग करके बताएंगी प्रिया सिंह कि कहां से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, कौन सी सीट डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, जो बाइडेन कहां पर आगे हैं, यानी रिपब्लिकन मैपिंग क्या है और डेमोक्रेट मैपिंग क्या है। लेकिन उससे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है ब्लू स्टेट क्या होता है, रेड स्टेट क्या होता है, स्विंग स्टेट क्या होता है। और यही समझाने के लिए आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलता हूं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में हम आपको ये समझाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें रेड और ब्लू स्टेट का मतलब क्या होता है। ब्लू स्टेट यानी कि नीला रंग और रेड स्टेट यानी कि लाल रंग। लाल रंग सीधे तौर पर रिपब्लिकन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और जो प्रभुत्व वाले इलाके होते हैं रिपब्लिकन्स के, उनके बारे में कहा जाता है कि ये रेड स्टेट हैं, और जो डेमोक्रेट के प्रभुत्व वाले इलाके होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये ब्लू स्टेट है। रिपब्लिकन पार्टी का जो फ्लैग है वो रेड है, समर्थक लाल टी शर्ट पहनते हैं, लाल कैप पे नजर आते हैं,
ट्रंप लगातार दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। और ब्लू स्टेट की बात यह होती है, डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों को बोलते हैं ब्लू स्टेट। डेमोक्रेट का फ्लैग ब्लू है, 24 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। डेमोक्रेट ने बाइडेन को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी 26 जो है ये रेड स्टेट कहे जाते हैं और 24 कुल मिला जुला करके जो अमेरिका के टोटल स्टेट्स हैं ना वो 50 हैं। 50 में से 26 कहे जाते हैं रेड और 24 कहे जाते हैं ब्लू स्टेट। ये एकदम आसान शब्दों में आप समझ जाएं। अब आपको ये लगेगा ये स्विंग स्टेट क्या भला है। स्विंग स्टेट ही दरअसल गेम चेंजर होते हैं और यहीं से जिसने मार ली बाजी वही बना लेता है यूएस की सरकार, यानी यूएस का प्रेसिडेंट वही बन जाता है। ऐसे राज्य स्विंग स्टेट जहां पर वोटर्स का मूड बदलने की बड़ी संभावना होती है, ओहियो हो गया, फ्लोरिडा हो गया, एरिजोना हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, विस्कॉन्सिन हो गया, इन सभी के बारे में कहा जाता है कि ये होते हैं स्विंग स्टेट। अब स्विंग स्टेट में क्या चल रहा है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि फ्लोरिडा में यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी जीत दर्ज कर ली है जब इलेक्टोरल वोट की बात आती है। ये इलेक्टोरल वोट क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि 5 चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। प्राइमरी, कॉकस, कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज, ये 5 चीजें क्या होती हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी क्या ताजा अपडेट है ये जानने के लिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं। न्यूज रूम से मेरी कोलीग इस वक्त जुड़ी हुई हैं, प्रिया के पास में हम चलेंगे। प्रिया, हमें ये बताइए कि अभी इलेक्टोरल वोटों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसे इलेक्टोरल वोट कितने मिले हैं, जो बाइडेन की जो बाजी अभी पलटती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में आपका अपडेट क्या है? और मैं चाहूंगा कि आप मैप में बिल्कुल मार्किंग और मैपिंग करके दिखाएं कहां पर मैप दिख रहा है रेड और कहां पर दिख रहा है ब्लू, क्योंकि मुझे 50 स्टेट्स की एक जानकारी जूम करके आप दिखाएं कि आप क्या दे सकती हैं। जी बिल्कुल राशिद, देखिए यूएस का इलेक्शन बेहद अहम है और सिर्फ अमेरिकियों की ही नहीं बल्कि मैं कहूंगी पूरे विश्व की नजर इसके रिजल्ट पर टिकी हुई है। हालांकि अब फैसला लगभग आता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रंप ने बाजी पलटते हुए जीत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और अभी ट्रंप की हमने पीसी भी सुनी है जिसमें उन्होंने ये साफ किया और ये कहा कि हम बड़े जश्न की तैयारी में हैं, हम जीत रहे हैं। और देखिए यूएस में 50 राज्य हैं जिसमें 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं और 270 का जो जादुई आंकड़ा होता है वो हमें चाहिए होता है। बहुत जल्दी मैप बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जहां पर आप देखेंगे राशिद, ये रेड निशान आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है और लगभग आपको इस पूरे मैप में आधे से ज्यादा मैप डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पूरे रेड निशान दिखाई देंगे और जहां पर आपको ये ब्लू दिखाई देगा इसका मतलब यह है कि जो बाइडेन ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि लीड डोनाल्ड ट्रंप के पास है और अगर वो 270 के जादुई आंकड़े को भी क्रॉस कर जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी राशिद। ठीक है प्रिया, दोबारा आपके पास लौट करके हम आते हैं और इसके अलावा दीपक कांवड़िया और अमरीश त्यागी हमारे साथ में हैं। हमारी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, जो चाइना पॉलिसी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, कश्मीर पॉलिसी को लेकर के सुमित पीर मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, कौन सी वो शख्सियत है जो ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर कही जाएगी। हालांकि कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो साझेदारी है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो एक कहते हैं ना कनेक्ट, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा अच्छा रहा है। ह्यूस्टन में हमने हाउडी मोदी प्रोग्राम में भी देखा था और जब नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया था तब भी कुछ इसी तरह की चीजें नजर आई थी। लेकिन हाँ, एक बार दीपक कांवड़िया के पास जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। दीपक जी, क्योंकि कहने के लिए तो 16 से 19 लाख वोटर हैं हिंदुस्तान के, लेकिन कुल वोटर्स में इनकी संख्या लगभग 0.82% कही जाती है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं इनका दिमाग जैसा भी चलता है वही व्हाइट हाउस की गद्दी तय कर देते हैं। अमेरिका में जो हिंदुस्तानी रहे हैं वो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में गए हैं, उनकी पॉलिसी के साथ में गए हैं। हाउडी मोदी के बाद में हमने पहले भी बताया आपको, हाउडी मोदी के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में और रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में काफी वोटिंग गई है। मुझे अच्छी तरह है, आपके एडिटर लास्ट टाइम आए थे, हम उनके साथ ट्रंप की रैली यहाँ पे काफी कम इंडियन वोटर्स थे और इस बार ट्रंप के सपोर्ट में काफी बड़ा ग्रुप, काफी बड़ा इंडियन कम्युनिटी, 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, बट ये 1% काफी हद तक मायना रखती है बिकॉज बहुत पावरफुल हो गए और इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया की पॉलिसी डिसाइड करने में। अमेरिका का इंडिया के प्रति क्या रुख हो उसमें भी डिसाइड करने में इन 1% लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है और ये 1% लोग एक इंडियन गवर्नमेंट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी रूल पास नहीं हो, पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई रूल पास नहीं हो जो टेररिज्म को प्रमोट करे और काफी चीजें हैं जो इस डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो हम ये
ये चीजें काफी हद तक इंडिया के फेवर में आती है। हाउडी मोदी के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी इसलिए किया क्योंकि उनको में इंडियन वोट मिले थे और मोदी जी ने वो इंडियन वोट को उनको के फेवर में करने में बहुत बड़ा सपोर्टिव दिया है और उसका बेनिफिट इंडिया को आगे मिला भी है। अभी चाइना के अगेंस्ट में जो अमेरिका ने अपना रुख किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो इंडियन अमेरिकन का वोट चाहिए, उनका प्रेशर था। तो ये सब बहुत मायना और आगे भी मेरे ख्याल से H-1B वीजा और दूसरे वीजा के जो इंडिया अमेरिका की पॉलिसी है वो लिबरल होगी। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी भी लिबरल होगी और उससे इंडियन के अनएम्प्लॉयमेंट को काफी अनएम्प्लॉयमेंट या जो एम्प्लॉयमेंट अमेरिकन ये H-1B वीजा के जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें काफी सपोर्ट मिलेगा। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी हमने इंडिया इन्वेस्ट है इंडिया में वन ऑफ द एसोसिएशन है उनके साथ भी बात की थी कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलने वाला है। जो चाइना से अमेरिका ने अपना एक्सपोर्ट कर दिया है वो एक्सपोर्ट इंडिया को मिलेगा, उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा बशर्ते कि इंडिया अपनी स्किल पर तैयार करे और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका की तरफ रुझान करें और अमेरिका में एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा एग्रेसर हो। मेरे ख्याल से जो 30 बिलियन का ट्रेड है अभी इंडिया अमेरिका के बीच में, ठीक है दीपक जी, हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे आगे भी बात करूंगा। हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे आगे भी बात करूंगा क्योंकि हम हिंदुस्तानी क्या है ना, हम ये समझते हैं कि भाई देखो अमेरिका ने हमारे डिफेंस को मजबूत किया। हम बहुत बार ये समझते हैं कि अमेरिका के जरिए हमें अपाचे मिला, हमें चिनूक मिला, हमने अमेरिका के साथ में शस्त्र शॉपिंग की। लेकिन हिंदुस्तान के चैलेंजेस बहुत अलग हैं। हिंदुस्तान के चैलेंजेस LAC पर हैं, LOC पर है। हिंदुस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो पूर्वी लद्दाख में है, हिंदुस्तान के चैलेंजेस POK में हैं, हिंदुस्तान के चैलेंजेस गिलगित और बाल्टिस्तान में हैं। और हिंदुस्तान के इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए ये कहा जाता है कि जो एशियन चैलेंज है इनमें हिंदुस्तान का बेहतर सहयोगी कौन साबित होगा।